السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جورسپروڈنس کے بعد نیکسٹ جو پورشن ہے وہ سی پی سی کا ہے. جی بالکل, میں نے آپ کے ساتھ سی پی سی کے کوسچن پہلے شیئر کر دیے ہیں, لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ وہ مکمل کوسچنس نہیں ہیں, وہ 16 یا 17 کوسچن ہیں غالباً. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک فلو میں جا رہے ہیں اور ہم ایک ترتیب سے جا رہے ہیں, تو میں نہیں چاہتی کہ جو ہماری ترتیب ہے کوسچن پیپر کو لے کے وہ کوئی آگے پیچھے ہو جائے. اس لیے میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے سی پی سی کے کمپلیٹ کوسچن جو ہے شیئر کروں گی, اور اس کے بعد لاسٹ پہ ہم ایگزامینر کی اپروچ کے بارے میں بات کریں گے, پرٹیکولرلی اس پورشن کو لے کے. سی پی سی کوسچن نمبر 31 جو کہ پوچھا گیا تھا سیکشن نمبر 3 میں سے, ایز پر سیکشن 3 آف دی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 for the purposes of this court, the district court is subordinate to the high court and every civil court of a grade inferior to that of a district court, and every court of small causes is subordinate to the high court and dash court. اس سوال کے آپشن تھے, آپشن اے سول, آپشن بی ڈسٹرکٹ, آپشن سی ریونیو, آپشن ڈی سپریم, اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ بی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ. کوسچن نمبر 32 جو کہ پوچھا گیا تھا آرڈر 1 رول 5 میں سے, ایز پر آرڈر 1 رول 5 آف سی پی سی اٹ shall not be necessary that every defendant shall be interested as to dash claimed in any suit against him. اور اس کے آپشن ہے A all the relief, B all the damages, C the consideration, D the compensations, اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ A ہے all the relief. نیکسٹ کوسچن نمبر 33 جو کہ پوچھا گیا تھا آرڈر 9 رول 6(2) میں سے, اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے where it is owing to the plaintiff default that the summon was not dash or was not served in sufficient time and so on. اور اس کے جو آپشن ہیں, آپشن اے ڈیولی سروڈ, آپشن بی انٹرٹینڈ, آپشن سی پوسٹڈ, آپشن ڈی سینٹ, اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ اے ہے ڈیولی سروڈ. کوسچن نمبر 34 جو کہ پوچھا گیا تھا سیکشن نمبر 47(2) میں سے, اور یہ سیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, ہر دفعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کی اسٹیٹمنٹ تھی ایز پر سیکشن 47(2) آف دی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 دا کورٹ میں سبجیکٹ ٹو ڈیش objection as to the limitation or jurisdiction treat a proceeding under this section and so on. اس سوال کے آپشن تھے, آپشن اے اینی, آپشن بی فیکٹول, آپشن سی لیگل, آپشن ڈی ٹیکنیکل, اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ اے ہے اینی. اگلا سوال کوسچن نمبر 35 جو کہ پوچھا گیا تھا آرڈر 6 رول 16 میں سے, اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے دا کورٹ میں at any stage of the proceedings order to be struck out or amend any matter to any pleading which may be unnecessary or scandalous or which may be tend to prejudice, embarrass or delay the dash of the suit. اور اس کے جو آپشن ہیں, آپشن اے ڈیسیژن, آپشن بی فیئر ٹرائل, آپشن سی انسٹیٹیوشن, آپشن ڈی پروسیڈنگ. اس کا رائٹ آنسر ہے بی فیئر ٹرائل. کوسچن نمبر 36 جو کہ پوچھا گیا ہے سیکشن نمبر 96(3) میں سے, اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے نو اپیل شیل لائی فرام اے ڈگری پاسڈ بائی دا کورٹ ڈیش. اس سوال کے آپشن ہیں, آپشن اے انڈر دا سپرویژن آف دی جج آف ہائی کورٹ, آپشن بی انڈر دا سپرویژن آف جج آف سپریم کورٹ, آپشن سی ود دی کنسنٹ آف پارٹیز, آپشن ڈی وداؤٹ دی کنسنٹ آف پارٹیز, اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ سی ہے ود دا کنسنٹ آف پارٹیز. کوسچن نمبر 37 پوچھا گیا تھا سیکشن 29 میں سے, اور یہ ڈیفینیشن کے متعلق سیکشن ہے, اور اس کی اسٹیٹمنٹ تھی ججمنٹ مینس دا اسٹیٹمنٹ گیون بائی دا ڈیش آف دی گراؤنڈس آف اے ڈگری اور آرڈر, اور اس کے جو آپشن ہیں, آپشن اے آربیٹریٹر, آپشن بی انکوائری آفیسر, آپشن سی جج, آپشن ڈی امپائر, اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ سی ہے جج. کوسچن نمبر 38 جو کہ پوچھا گیا تھا سیکشن 115 میں سے, اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے دا ہائی کورٹ میں کالز فار ڈیش of any case which has been decided by any court subordinate to such high court and so on. اور اس کے آپشن ہے اے ڈگری, آپشن بی ججمنٹ, سی پارٹیز, ڈی ریکارڈ, اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ڈی ہے ریکارڈ. کوسچن نمبر 39 جو کہ پوچھا گیا تھا سیکشن 151 میں سے, اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے نتھنگ ان دس کوڈ ڈیش بی ڈیم ٹو لمٹ اور ادروائز افیکٹ دا انہیرنٹ پاور آف دی کورٹ to make such orders as may be necessary for the ends of the justice to prevent abuse of the process of the court. اس سوال کے آپشن تھے, آپشن اے may, بی may not, سی shall, ڈی shall not, اور اس کا رائٹ آنسر ہے سی shall.
क्वेश्चन नंबर 40 जो कि पूछा गया था ऑर्डर 8 रूल नंबर 10 में से, और इसकी स्टेटमेंट है वेयर एनी पार्टी फ्रॉम होम आ रिटर्न स्टेटमेंट इज सो रिक्वायर्ड फोर्स टू प्रेजेंट द सेम विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय कोर्ट, द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट डैश और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंग्स फिट। और इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अगेंस्ट हिम, ऑप्शन बी अगेंस्ट द पेटिशनर, ऑप्शन सी इन फेवर ऑफ हिम, ऑप्शन डी इन फेवर ऑफ द पेटिशनर, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है अगेंस्ट हिम। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 75 में से, लेकिन उससे पहले आप ये बात जहन नशीन कर लें, सेक्शन नंबर 75, सेक्शन नंबर 47, सेक्शन 151 एंड सेक्शन 96, ये जो 4 सेक्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। हर दफ़ा लॉ गेट में 1 या 2 सवाल इसमें से लाजमी आते हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट पे। तो वो थी जी, एज पर सेक्शन नंबर 75D ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट मे इशू एन डैश टू मेक अ पार्टीशन, और इसके जो ऑप्शन है ए कमीशन, बी डिक्री, सी ऑर्डर, डी समन, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है कमीशन। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि पूछा गया था ऑर्डर 6 रूल 3 में से, और इसके स्टेटमेंट है द फॉर्म्स इन डैश व्हेन एप्लीकेबल एंड वेयर दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर्म्स ऑफ द लाइक कैरेक्टर एज नियरली एज मे बी शैल बी यूज्ड फॉर ऑल प्लीडिंग्स। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अपेंडिक्स ए, ऑप्शन बी अपेंडिक्स बी, ऑप्शन सी अपेंडिक्स सी, ऑप्शन डी अपेंडिक्स डी, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है अपेंडिक्स ए। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 1041H में से, और इसकी स्टेटमेंट है एन अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग डैश और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन in the civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of a degree। और इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाइन, ऑप्शन बी पेनल्टी, ऑप्शन सी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन डी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है फाइन। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 20C में से, और इसकी स्टेटमेंट है सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस मेंशन्ड इन द CPC every suit dash instituted to a court within the local limits of whose jurisdiction the cause of action wholly or in part arises। और इसके जो ऑप्शन थे ए मे, बी मे बी, सी शैल और डी शैल बी। इसका जो राइट आंसर है वो शैल बी है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि पूछा गया था ऑर्डर नंबर 39 रूल 4 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एनी ऑर्डर फॉर डैश मे बी डिस्चार्ज्ड और वेरिड और सेट असाइड बाय द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड देयर टू बाय एनी पार्टी डिससेटिस्फाइड विथ सच ऑर्डर, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिलीफ, ऑप्शन बी एन इंजंक्शन, ऑप्शन सी कंपनसेशन, ऑप्शन डी डैमेजेस, और इसका जो राइट आंसर है वो बी है एन इंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि पूछा गया था ऑर्डर नंबर 41 रूल 91 में से, और इसकी जो स्टेटमेंट थी वो थी वेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अपील इज एडमिटेड द डैश कोर्ट और द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल एंडोर्स एंड सो ऑन। इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपीलेट, ऑप्शन बी सिविल, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी हाई, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है अपीलेट। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि पूछा गया था ऑर्डर नंबर 43 रूल 1E में से, और बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस था, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अपना बेरक देखते हैं तो ऑर्डर नंबर 43 में और रूल नंबर 1E में ये जो क्वेश्चन है इसको बताया गया है, मुकम्मल इसकी स्टेटमेंट दी गई है, और कोई भी सेक्शन या कोई भी एक्ट या कोई भी ऑर्डर जो कि ओमिटेड होता है, लेकिन अगर उसका हवाला किसी दूसरे ऑर्डर में या सेक्शन में होता है तो वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो ये जो आपका डाउट था इस क्वेश्चन को लेके ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एन अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर अंडर रूल 4 ऑफ ऑर्डर डैश प्रोनाउंसिंग जजमेंट अगेंस्ट अ पार्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 104 ऑफ CPC, और इसके जो ऑप्शन है A 9, B 10, C 11, D 12। इसका राइट आंसर है B 10।
क्वेश्चन नंबर 48 जो कि पूछा गया था ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 12 में से, और इसकी स्टेटमेंट है वेयर अ प्लेंट इज़ रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद द रीज़न फॉर सच डैश ए डिसमिसल, बी ऑर्डर, सी रेफिटिशन, डी रिजेक्शन, और इसका जो राइट आंसर है वो बी है ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 17 में से, और इसकी स्टेटमेंट है वेयर अ सूट to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situated within the jurisdiction of dash courts and so on, और इसके ऑप्शन है ए डिफरेंट, बी डिस्ट्रिक्ट, सी फॉर्मल, डी हाई, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है डिफरेंट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो कि पूछा गया था ऑर्डर नंबर 7 रूल 10(1) में से, और इसकी स्टेटमेंट है द प्लेंट शेल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न्ड to be presented to the court in which the suit shall have been dash, और इसके ऑप्शन है ए executed, बी instituted, सी proceeded, डी progressed, और इसका जो राइट आंसर है वो बी है instituted। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारे 3 पोर्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सीपीसी कंप्लीट होते हैं, और हाफ नंबर का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ एग्ज़ामिनर अप्रोच की, जो कि सीपीसी में रही है। अगर आप सीपीसी को क्रिटिकली देखते हैं, ख़ास तौर पे इस पोर्शन को, तो जितना भी सिलेबस लॉ गेट के हवाले से सीपीसी का बताया हुआ है, आप देखेंगे कि हर एक सेक्शन में से, हर एक ऑर्डर में से उसने एक सवाल लाजमी दिया है, यानी कि वो जो चॉइस होती थी उसने बिल्कुल ख़त्म करके रख दी है सीपीसी के पोर्शन में। पहले ऐसा होता था कि हम सेक्शन कर लेते थे क्योंकि ज़्यादा पोर्शन सेक्शन से आता था, और ऑर्डर कोई 1-2 वो जो है टच कर लेता था, और वो भी ऐसे ऑर्डर होते थे जो हमें आते थे, यानी कि पहला, 7वां, 6ठा, ये जो ऑर्डर थे हमें आते थे, आसान लगते थे, तो उसी में से क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है वो ऐसा हुआ है कि हर सेक्शन में से एक सवाल है और हर ऑर्डर में से एक सवाल है, और जो ऑर्डर के क्वेश्चन हैं वो दरमियान से हैं, बिल्कुल स्टार्ट से नहीं है। किसी का बिल्कुल स्टार्ट है, किसी का दरमियान है, किसी का लास्ट है। अगर इन तमाम पॉइंट्स को समराइज़ किया जाए और आसान से लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो जो एग्ज़ामिनर की अप्रोच थी ख़ास तौर पे सीपीसी के हवाले से, वो ये थी कि जितना सिलेबस सीपीसी का दिया गया है उसने तमाम के तमाम सिलेबस को टच करते हुए एक आधा सवाल हर सेक्शन में से, हर ऑर्डर में से लाजमी देना था, और उसने दिया है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो चॉइस होती थी, जो हम पहले कुछ ना कुछ सेक्शन या ऑर्डर छोड़ देते थे, उसके साथ हमारी जो चॉइस है वो बिल्कुल ख़त्म करके रख दी। इस दफ़ा का जो लॉ गेट पेपर था आपके सिलेबस में से, लेकिन ये है कि जो आपकी चॉइस होती थी उसको काफ़ी महदूद कर दिया गया था इस दफ़ा लॉ गेट पेपर में। तो आपने भी अब जो अपनी तैयारी करनी है वो बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ करनी है। ऐसा ना हो कि आप चॉइस पे ज़्यादा छोड़ दें सब्जेक्ट को, और बाद में आपको पता चले कि एग्ज़ामिनर ने पेपर दोबारा से इसी अप्रोच के साथ दिया है, तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो बेहतर है कि जो छोटे सेक्शन हैं, थोड़ा सिलेबस है, आप उनको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये नंबर दे जाते हैं।